دھرنوں میں قانون ہاتھ میں لینے والوں کو سزا دی جائے، وزیر اعظم کی زیر صدارت ٹاسک فورس کا اجلاس۔ شہباز شریف نے کہا انتشار پھیلانے والوں کے خلاف قانونی کارروائی پر پیش رفت کا ہر ہفتے جائزہ لیا جائے گا۔ پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں، دہشت گرد گروہ ہے، اس کا خاتمہ ضروری ہے ورنہ پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب، کہا پنجاب اور پاکستان سے سیاسی گند کا صفایا ضروری ہے۔ اسلام آباد میں جو ہوا وہ احتجاج نہیں، وفاق پر حملہ تھا۔ اور کورونا وائرس ووہان کی لیبارٹری سے پھیلا، امریکی کانگریس کی سب کمیٹی برائے کورونا وائرس کی رپورٹ جاری۔ رپورٹ کے مطابق وائرس لیبارٹری لیک سے پھیلا۔ چینی حکومت، امریکی ایجنسیوں، سائنسی اداروں نے حقائق چھپانے کی کوشش کی۔ 2 سال کی تحقیقات پر مبنی رپورٹ 520 صفحات پر مشتمل ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے پاس آخری کارڈ باقی ہے، وہ ابھی کسی کو نہیں بتائیں گے۔ علیمہ خانم کی اڈیالہ جیل کے باہر صحافیوں سے گفتگو، کہا بشا بی بی کی طرح دیگر قیادت کو بھی کنٹینر پر ہونا چاہیے تھا۔ بانی کی صحت سے متعلق غلط خبریں چلائی جا رہی تھی، بانی کو بتایا تو ہنس پڑے، وہ ٹھیک ہیں، ورزش کرتے رہتے ہیں۔ علی محمد خان نے کہا بانی پی ٹی آئی کی رہائی تمام مسائل کے حل کی کنجی ہے، آج نہیں تو کل انصاف ضرور ہوگا، جس نے غلط کیا ہے اسے سزا ملنی چاہیے۔ فواد چودھری کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی سے براہ راست بات چیت کیے بغیر ملک میں سیاسی استحکام نہیں آ سکتا، تلخیاں کم کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ بانی پی ٹی آئی کا ٹویٹر اکاؤنٹ منظم پروپیگنڈا کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، وہ خود ٹویٹر ہینڈل نہیں کر رہے۔ فیصل وابدہ کا ٹویٹ، لکھا بشرا بی بی، قاسم سوری جیسوں نے بانی کو پاگل قرار دینے سے مارنے تک کی سازش کر رکھی ہے۔ یہ سب مل کر بانی پی ٹی آئی کو اس دلدل میں لے جا رہے ہیں جہاں سے واپسی نہ ہو۔ گزشتہ روز اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جان بوجھ کر ٹویٹ آگ لگانے کے لیے لکھا گیا۔ بانی نے اچھا فیصلہ کیا، حکومت سے بات چیت کی جائے، سڑکوں کے بجائے اسمبلیوں کا رخ کیا جائے۔ ان کے ٹویٹر کو وقتی طور پر نظر انداز کریں ورنہ نقصان اس سے زیادہ ہوگا۔ عدالت نے توشہ خانہ کیس 2 میں بشا بی بی کو پیش ہونے کے لیے آخری موقع دے دیا۔ اڈیالہ جیل میں سماعت کے دوران اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر نے موقف اپنایا۔ بشا بی بی پیش نہ ہو کر فرد جرم کی کارروائی تاخیر کا شکار کر رہی ہیں۔ وکیل سلمان صفدر نے کہا بشا بی بی پر نئے 19 مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ انہوں نے تمام مقدمات میں ضمانت کے لیے پشاور ہائی کورٹ میں سرنڈر کیا۔ انڈر ٹیکنگ دیتے ہیں کہ بشا بی بی 5 دسمبر کو عدالت میں پیش ہوں۔ پشاور ہائی کورٹ نے بشا بی بی کو 23 دسمبر تک راہداری ضمانت دے دی۔ جی ایچ کیو حملہ کیس میں مسلسل غیر حاضری پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے وارنٹ جاری۔ زرتاج گل سمیت دیگر 44 ملزمان کے بھی وارنٹ جاری۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی بریت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ اے ٹی سی اسلام آباد نے ڈی چوک احتجاج کیس میں عمر ایوب کی 10 دسمبر تک ضمانت منظور کر لی۔ 17 مظاہرین 1 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ جج نے ریمارکس دیے، کل دیکھیں گے جوڈیشل کرنا ہے یا مزید ریمانڈ دینا ہے۔ پولیس نے کیا برآمدگی کی ہے؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے مقدموں کو اپنی ڈگریاں قرار دے دیا، کہا ان پر 250 سے زیادہ پرچے ہیں، یہ مقدمے ہماری ڈگریاں ہیں۔ طلبہ سے خطاب میں علی امین گنڈاپور کا کہنا تھا مقابلہ کرنے والوں کو ہار بھی نہیں ہرا سکتے، آپ نے ہار نہیں مانی، ناکامیوں سے نہیں ڈرنا، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آبی وسائل محفوظ رکھنے کے لیے اہم اقدامات کرنا ہوں گے، خشک سالی بڑھ رہی ہے، عالمی برادری مسئلے پر قابو پانے کے لیے کردار ادا کرے۔ سعودی عرب میں ون واٹر سربراہی اجلاس سے وزیر اعظم شہباز شریف کا خطاب، کہا موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے ترقی پذیر ملکوں کو مدد کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ دورہ سعودی عرب میں ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور دیگر اہم شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے۔ قوم کی حمایت سے مسلح افواج ہر خطرے کا بھرپور اور مؤثر مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ افواج مادر وطن کی سالمیت اور خود مختاری کی حفاظت کی مکمل صلاحیت رکھتی ہیں۔ آرمی چیف کی نارووال اور سیالکوٹ کے قریب تربیتی مشقوں کے مشاہدے کے دوران گفتگو۔ جنرل عاصم منی کو تربیتی مشقوں کے مختلف پہلوؤں پر بریفنگ دی گئی۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے مشقوں میں الیکٹرانک جنگی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا گیا۔
आर्मी चीफ ने तरबियती मयार, ऑपरेशनल तैयारी और बुलंद हौसले की तारीफ। तहरीक इंतशार वालों, एक वीडियो ले आओ जिसमें गोली चलाई गई हो। झूठा बयानिया चलाया गया कि गोली क्यों चलाई। रेंजर्स के 3 और पुलिस का 1 एहलकार शहीद हुआ। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले डिफॉल्ट के दहाने से हम यहां तक पहुंचे हैं। महंगाई में वाज़ेह कमी आई है, मईशत बेहतर हो रही है। स्टॉक एक्सचेंज का 1 लाख की सतह अबूर करना रिकॉर्ड है। एहतजाज के दौरान तशद्दुद का निशाना बनने वाले SHO का वीडियो बयान भी सामने आ गया। ताहिर इकबाल ने बताया 24 नवंबर को मोटरवे पर तैनात थे। शरपसंदों ने घेर कर तशद्दुद का निशाना बनाया और खाई में फेंक दिया। तशद्दुद से बाजू फ्रैक्चर हुआ। दानिस्ता झूठी मालूमात फैलाने, खौफ और बेअमनी पैदा करने वालों को 5 साल कैद, 10 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं होंगी। हुकूमत का पीका एक्ट में तरमीम का फैसला। जराये का कहना है डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम की जाएगी, जिसके पास सोशल मीडिया से मवाद हटाने या ब्लॉक करने का इख्तियार होगा। अथॉरिटी कानून नाफिज करने वाले इदारों या फर्द के खिलाफ मवाद हटाने का हुक्म जारी कर सकती है। अथॉरिटी का चेयरमैन और 6 अरकान होंगे। अथॉरिटी के फैसले के खिलाफ ट्राइब्यूनल से रुजू किया जा सकेगा। नेशनल एक्शन प्लान की कोऑर्डिनेशन कमेटी का नेक्टा और सूबों में कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने का फैसला। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं मौसर कोऑर्डिनेशन के लिए नेशनल फ्यूजन सेंटर कायम कर दिया गया है। अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए सब ने मिलकर काम करना है। मोहसिन नकवी का कानून नाफिज करने वाले इदारों की जरूरियात तरजीही बुनियादों पर पूरी करने का ऐलान। PTA के ताउन से सोशल मीडिया से कलअदम दहशतगर्दियों के अकाउंट ब्लॉक करने का भी फैसला। गुमशुदा अफराद का केस इंतहाई अहम है। गुमशुदा अफराद वापस आने पर कुछ नहीं बताते। कहते हैं शिमाली इलाका जात आराम के लिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जमाल मंदखेल के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदखेल ने सरदार लतीफ खोसा को बात करने से रोकते हुए कहा, खोसा साहब अदालत में सियासी बात न करें, पार्लियामेंट का आम या मुश्तरका इजलास बुलाकर मसला हल करें। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल ने कहा, हुकूमत गुमशुदा अफराद का मामला हतमी तौर पर हल करना चाहती है। लापता अफराद केस में अटॉर्नी जनरल, वजारत दाखिला और दीगर को नोटिस जारी। कौमी असम्बली के 3 हलकों के ट्राइब्यूनल तब्दीली केस में नून लीग की दरख्वास्त मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने PTI का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल शकूर पराचा को इलेक्शन ट्राइब्यूनल इस्लामाबाद मुकर्रर कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को साबिक DG नैब शहजाद सलीम के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। शहजाद सलीम ने नैब चार्जशीट अदालत में चैलेंज कर रखी है। अदालत के पिटीशन के फैसले तक नैब को शहजाद सलीम के खिलाफ कार्रवाई न करने का हुक्म। जवाब के लिए नैब को 16 दिसंबर के लिए नोटिस जारी। नैब से इंक्वायरी की मुकम्मल रिपोर्ट और पैरावाइज कमेंट्स तलब कर लिए गए। जनूबी कोरिया में सदर ने मार्शल लॉ लगा दिया। सदर यून सोक येओल का अपोजिशन पर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों का इल्जाम। कहा, आजाद और जमहूरी मुल्क की तामीर नौ करेंगे। हुक्मरान जमात के सरबराह ने मार्शल लॉ की मुखालिफत कर दी। कहा, इमरजेंसी का इकदाम गलत है। कोरिया के आवाम के साथ मिलकर मार्शल लॉ का मुकाबला करेंगे। सुफियान मुकीम की घूमती गेंदों ने बल्लेबाजों को चकरा कर रख दिया। सिर्फ 3 रन देकर 5 शिकार कर डाले। जिम्बाब्वे की पूरी टीम 57 पर ढेर हो गई। जिम्बाब्वे की पहली विकेट 37 रन में गिरी। उसके बाद पूरी टीम सिर्फ 20 रन का इजाफा कर सकी। जवाब में साइम अयूब और उमर बिन यूसुफ ने छठे ओवर में हदफ हासिल कर लिया। सुफियान मुकीम मैन ऑफ द मैच करार। सुफियान ने उमर गुल का बेहतरीन बॉलिंग का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला। IPL की इजाजत है तो PSL की क्यों नहीं? इंग्लिश क्रिकेटर्स अपने बोर्ड के खिलाफ बगावत पर उतर आए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खिलाड़ी बोर्ड की नई पॉलिसी पर गुस्सा। नई पॉलिसी के तहत भारतीय लीग के लिए इंग्लिश बोर्ड खिलाड़ियों को NOC जारी करेगा, लेकिन पाकिस्तान की लीग के लिए इजाजत नहीं मिलेगी। प्लेयर्स के एजेंट के मुताबिक इंग्लैंड बोर्ड भारत को नाराज नहीं करना चाहता। प्लेयर्स एजेंट का कहना है इंग्लैंड बोर्ड के लिए ताकत का महवर भारत है। इंग्लैंड के कई खिलाड़ी कानूनी कार्रवाई करने को तैयार हैं। PSL खेलने के लिए कई इंग्लिश खिलाड़ी रिटायर होने को भी तैयार हैं, जिसके बाद उन्हें NOC दरकार नहीं होगी। खुसूसी अफराद के आलमी दिन, पाकिस्तान ब्लाइंड T20 चैंपियन बन गया। फाइनल में बांग्लादेश को 10 विकेट से शिकस्त दी।
140 रन का हदफ 11वें ओवर में हासिल कर लिया। कप्तान निसार अली ने 72 और सफदर ने 47 रन की शानदार इनिंग्स खेली। सदर आसिफ जरदारी और चेयरमैन पीसीबी की मुबारकबाद। सदर जरदारी ने कहा, खुसूसी खिलाड़ियों ने वर्ल्ड कप जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मोहसिन नकवी ने कहा, ब्लाइंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने शानदार खेल का मुजाहिरा किया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खुसूसी अफराद का दिन मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पैगाम में कहा, आज का दिन खुसूसी अफराद और उनके खानदानों की इस्तकामत का एतराफ़ है। हुकूमत ने खुसूसी अफराद को बाइख्तियार बनाने और उनकी फलाह के लिए अहम इक़दामात किए हैं। वज़ीर आज़म बोले, खुसूसी अफराद की मदद के लिए अनथक मेहनत करने वालों के ताउन को सराहते हैं। हमें ऐसे रवैयों को चैलेंज करना है जो माजूर अफराद से इम्तियाजी सलूक को रवा रखते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, खुसूसी अफराद के लिए जामे और मसावी मुआशरा बनाने की जिद्दोजहद जारी रखेंगे। कोयटा के स्पेशल एजुकेशन स्कूल में तदरीसी अमल की मुअत्तली। ARY न्यूज की खबर पर वज़ीर आला बलूचिस्तान का नोटिस। खराब गाड़ियों की 10 दिन के अंदर मुरम्मत करने की हिदायत। कहा, स्कूल की हालत भी दुरुस्त करेंगे। ARY न्यूज का शुक्रिया जो मामला हमारे इल्म में लाया। बहावलपुर में घर से 5 अफराद की लाशें मिली हैं। मियां बीवी और 3 बेटे शामिल। पुलिस का कहना है, इब्तदाई शवाहिद के मुताबिक पूरी फैमिली को फायरिंग करके कत्ल किया गया। बेहोश बच्ची की हालत भी तशवीशनाक। बच्ची के जिस्म पर जख्म का कोई निशान नहीं। IG पंजाब का नोटिस। RPO बहावलपुर से रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्जिमान की जल्द अज जल्द गिरफ्तारी का हुक्म। कराची और अंगी पीराबाद में पुलिस मुकाबला मशकूक हो गया। मुल्जिमान का मुजिमाना रिकॉर्ड नहीं। कंपनी में मुलाजमत करते थे। जराए का कहना है, गुज़श्ता रोज मुकाबले की वीडियो में भी मुल्जिमान के पास पिस्तौल नहीं थे। मुल्जिमान के अहले खाना ने मुकाबला जाली करार दे दिया। कहा, इंसाफ ना मिला तो एहतजाज करेंगे। IG सिंध और DG रेंजर्स मामले पर तहकीकात कराएं। एडिशनल IG कराची का ARY न्यूज की खबर पर नोटिस। तहकीकाती कमेटी बनाने का फैसला। AIG का कहना है, शफाफ तहकीकात के लिए तमाम पहलुओं को देखा जाएगा। हलाक अफराद बेकसूर साबित हुए तो जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से चीन के सफीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फरोग समेत समाजी और सकाफती राबतों में इजाफे पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में साबिक वज़ीर खारिजा हिना रब्बानी खर भी मौजूद थीं। इसराइल ने इलाकाई अमन और सलामती को खतरे में डाल दिया। मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल पर शदीद तशवीश है। पाकिस्तान खित्ते में अमन सलामती लेबनान की खुद मुख्तारी के मुतालबे का इयादा करता है। खौफ और तशद्दुद से आज़ाद जिंदगी फ़लस्तीन, लेबनान और शाम के अवाम का हक है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ECO वुज़रा कौंसिल के इजलास से खिताब। कहा, इसराइल की गजा में नस्ल कुशी और लेबनान में जारियत की मजम्मत करते हैं। मुश्तरका इक़दार की बुनियाद पर ECO अहम इलाकाई प्लेटफॉर्म है जो रुकन ममालिक के मुश्तरका मफादात का बेहतरीन मौका फराहम करती है। इसराइली यरगमाली रिहा न हुए तो खित्ता जहन्नम बन जाएगा। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। कहा, मेरी हलफ बर्दारी से पहले हमास यरगमालियों को रिहा कर दे। ऐसा ना किया गया तो जिम्मेदारों को ऐसा सबक सिखाया जाएगा जो अमरीकी तारीख में पहले कभी नहीं दिया गया होगा। गुज़श्ता रोज हमास ने कहा था, इसराइल अपनी अहमकाना जंग से यरगमालियों को हमेशा के लिए खो सकता है। इसराइल को कुछ करना है तो कर ले, इससे पहले कि देर हो जाए। गजा में इसराइली जारियत बरकरार। मजीद 36 अफराद शहीद। बैतुल्लाहिया में घर पर हमले में 4 अफराद शहीद हुए। शिमाली गजा में 2 माह से जारी इसराइली मुहासरे के बायस सूरत हाल बदतर। लेबनान के जनूबी इलाकों में इसराइली फोर्सेस की बमबारी, 11 अफराद शहीद। सऊदी फोर्सेस ने बेघर अफराद को जनूबी लेबनान के इलाकों में मुंतकिली से भी रोक दिया। हिजबुल्लाह का इसराइली जारियत के जवाब में इलाके शीबा फॉर्म्स में इसराइली फौजी अड्डे पर हमला। 27 नवंबर को लेबनान में जंगबंदी का ऐलान किया गया था। मुल्क भर में सर्दी कदम जमाने लगी। बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी से सर्दी में इजाफा। हुंजा गोपस में पारा -3, स्कर्दू में -2 और कालाम में -1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान के बेशतर अजला मगरिबी हवाओं के जेर असर आ गए। बारिश से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। कराची का मौसम भी तब्दील, तेज खुश्क और सर्द हवाएं चलने लगी। कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस की तैयारियां। 17वां उर्दू मेला 5 दिसंबर से आर्ट्स काउंसिल में सजेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सदर आर्ट काउंसिल अहमद शाह ने कहा, आलमी कॉन्फ्रेंस ने उर्दू को ब्रांड बना दिया है। अनवर मकसूद ने कहा, कॉन्फ्रेंस के निकात पर सवाल उठाने वाले हसद का शिकार हैं। फनकारों को बुलाना अच्छी बात है, उर्दू ठीक होगी।
8 دسمبر تک جاری رہنے والی کانفرنس میں دنیا بھر سے مہمان آئیں گے، 60 سے زائد سیشنز ہوں گے۔ اور حیدرآباد میں سارا تھر کی ثقافت چھا گئی۔ سندھ میوزیم میں تھر فیسٹیول نے خوب رنگ جمایا۔ تھری دستکاری، کھانوں اور مشروبات کے اسٹال، مقامی فنکاروں نے تھری موسیقی اور رقص سے 4 چاند لگا دیے۔